So in this video, we will discuss about the gangrene, an important topic from the veterinary pathology portion. So without any further ado, let's get started. So simply the gangrene is defined as the invasion and the putrefaction of the necrotic tissues by the saprophytic bacteria. It is seen most often in the case of lungs, intestine, mammary glands and heavy muscles of the thigh and the shoulder and the extremities. सो देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द गैंग्रीन. सो सिंपली इट इज डिफाइंड एज द इन्वेजन एंड द प्यूट्रीफैक्शन ऑफ द नेक्रोटिक टिश्यूज बाय द सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया. बेसिकली गैंग्रीन में क्या होता है कि जो भी नेक्रोटिक टिश्यूज हैं, ऐसे टिश्यू जिनके सेल की डेथ हो चुकी है, वहां पे सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया इन्वेड करते हैं और उसको प्यूट्रीफाई करते हैं. ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैंग्रीन. ठीक है. After that, it is seen mostly in the case of lungs, intestine, mammary glands, heavy muscle of the thigh, shoulder and the extremities. Basically ये जो गैंग्रीन है आपको lungs, intestine, mammary glands, heavy muscle of the thigh bone, shoulder और extremities में अक्सर देखने के लिए मिलती है. ठीक है. So now moving on, in the case of the lungs, the most commonly from the faulty drenching of the medicine, improper insertion of the stomach tube, paralysis and the infectious disease of the throat is the cause of gangrene. In the case of intestine, it is seen in the horse and the horse infection from verminous thrombus in the anterior mesenteric artery or the acute local passive hyperemia associated with the malposition of the viscera is the cause of gangrene. In the nutshell, the vascular disturbances led to the necrosis which is invaded by the different saprophytic bacteria and later on the gangrene. So देखो भाई, in the case of the lungs, the most commonly from the faulty drenching of the medicine, improper insertion of the stomach tube, paralysis and infectious disease of the throat is the cause of gangrene. Basically मैंने आपको बताया था कि गैंग्रीन क्या है. सिंपली जो भी नेक्रोटिक टिश्यूज हैं वहां पे सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया इन्वेड करते हैं और प्यूट्रिफिकेशन करते हैं. इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैंग्रीन. ठीक है. अब ये जो गैंग्रीन है अक्सर हमें लंग्स, इंटेस्टाइन, एक्सट्रीमिटीज वगैरह में हमें देखने के लिए मिलती है. तो अगर मैं लंग्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो सबसे कॉमन कॉज है फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस गैंग्रीन इज द फॉल्टी ड्रेंचिंग ऑफ द मेडिसिन, improper insertion of the stomach tube in the animal, paralysis of the animal and the infectious disease of the throat. ठीक है. सो अब बात करते हैं इंटेस्टाइन की, इन विच द गैंग्रीन इज यूजुअली सीन. So simply the gangrene in the intestine is seen in the case of horses. So simply it results from a verminous thrombus in the anterior mesenteric artery or the acute local passive hyperemia associated with the malpositioning of the viscera. अब देखो, ये जो गैंग्रीन है अगर इंटेस्टाइन में होती है तो इस तरीके के केस अक्सर हमें हॉर्स में देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है. इसमें क्या होगा कि यहाँ पे वर्मिनस थ्रोम्बस का डेवलपमेंट हो जाएगा इन द एंटीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी. ठीक है. एक क्लॉट का डेवलपमेंट हो जाएगा, एक ब्लड क्लॉट का, जिसमें वर्म्स और इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट होंगे. ये कहाँ पे डेवलप होगा, एंटीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी में. ठीक है. साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज हो सकती है, देयर विल बी एक्यूट लोकल पैसिव हाइपरमिया, जिसकी वजह से जो विसरल ऑर्गन्स है उनकी माल पोजिशनिंग हो जाएगी. एंड ऑल दीज फैक्टर्स टुगेदर लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ गैंग्रीन. इन द नटशेल अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे हॉर्स में वेस्कुलर डिस्टर्बेंसेस आए. ठीक है. यहाँ पे जो ब्लड फ्लो था उसमें डिस्टर्बेंसेस आए, तभी तो थ्रोम्बस बना, तभी हाइपरमिया की कंडीशन जनरेट हुई, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो गया, टिश्यूज और सेल्स का नेक्रोसिस. ठीक है. अब उन नेक्रोटिक टिश्यूज और सेल को सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया ने इन्वेड करा एंड देन फॉर्म्स द गैंग्रीन. ठीक है. Now moving on, in the extremities, the gangrene of the leg, ear, tail, wattle or the comb is associated with the freezing. The freezing lead to the cognitive necrosis, which is later on bacterially invade and led to the formation of gangrene. The certain drugs or the plant like ergot and the mold on the fescue grass cause the ischemia due to the arterial spasm and restriction of the blood flow. The senile gangrene is due to the arteriosclerosis. The diabetic gangrene have the high sugar favor bacterial growth. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the gangrene in the extremities. ठीक है. So simply the gangrene of the leg, ear, tail, water or the comb is associated with the freezing.
बेसिकली किसी भी एनिमल्स की जो बॉडी में एक्सट्रीमिटीज है, जैसे कि उसकी लेग, जैसे कि उसके ईयर, टेल, वॉटल और कॉम, वहां पे जो गैंग्रीन होती है, इट इज सिंपली एसोसिएटेड विद द फ्रीजिंग। फ्रीजिंग इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द गैंग्रीन। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, फ्रीजिंग की वजह से वहां पे कॉग्निटिव नेक्रोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है टिश्यूज और सेल में, जिसकी वजह से वहां के टिश्यू और सेल क्या हो गया, उनकी डेथ हो गई और वहां पे बैक्टीरियल इन्वेजन हो गया, फिर प्यूट्रिफिकेशन एंड देन फाइनली द गैंग्रीन इज डेवलप्ड। ठीक है, there are certain plant or the drugs that can cause the ischemia due to the arterial spasm and the restriction of the blood flow। बेसिकली कुछ ऐसे ड्रग हैं और कुछ ऐसे प्लांट हैं, अगर उन पर कोई एनिमल फीड कर लेता है तो वहां पे इश्कीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से फाइनल रिजल्ट गैंग्रीन होता है। बेसिकली प्लांट कैसे एयरगॉट और मोल्ड ऑन द फेस्क्यू ग्रास, अगर इन पे कोई एनिमल फीड कर लेगा तो वहां पे क्या है, उस एनिमल के ब्लड फ्लो में रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। अब जब ब्लड फ्लो में रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा तो टिश्यूज और सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी। जब वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो वहां के टिश्यूज और सेल की डेथ हो जाएगी, नेक्रोटिक टिश्यूज में बैक्टीरिया इन्वेड करेंगे एंड देन द गैंग्रीन विल फॉर्म। ठीक है, after that the senile gangrene is also seen in the extremities and the causative agent is the arteriosclerosis। बेसिकली क्या है, अगर किसी एनिमल के ब्लड वेसल्स थिक हो जाएं तो वहां पे जितनी ब्लड सप्लाई होनी चाहिए उतनी तो नहीं हो पाएगी, इसका मतलब सेल्स और टिश्यूज को कम ऑक्सीजन सप्लाई होगी, जिसकी वजह से एक स्लो ग्रोथ होगी गैंग्रीन की। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास ब्लड वेसल है, उसकी वॉल्स थिक हो गई हैं। ठीक है, किसी एनिमल में अब यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो गई, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई टू द सर्टेन टिश्यूज एंड द सर्टेन सेल। अब यहाँ पे नेक्रोसिस तो होगा लेकिन बहुत स्लो होगा। अब जब स्लो नेक्रोसिस होगा तो स्लो बैक्टीरियल इन्वेजन होगा, और स्लो बैक्टीरियल इन्वेजन होगा तो स्लो गैंग्रीन फॉर्मेशन होगा। एंड सिनाइल गैंग्रीन इज ऑल्सो नोटिस्ड इन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, moving on, the diabetic gangrene is also noticed and the high sugar favor bacterial growth is usually seen। बेसिकली एक्सट्रीमिटीज में हमें डायबिटिक गैंग्रीन भी देखने के लिए मिलती है और वहां पे हमें हाई शुगर फेवर बैक्टीरियल ग्रोथ नोटिस करने के लिए मिलती है। ठीक है, now moving on, the gangrene is of the two types, the dry gangrene and the moist gangrene। Whether the dry occurs or the moist depend upon the amount of the moisture as well as the temperature of the tissue। When the cognitive necrosis is dominant, the process is dry gangrene, and when the liquefative necrosis is pronounced, it is moist or the wet gangrene। देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द टाइप ऑफ गैंग्रीन। तो सिंपली हमारे पास दो टाइप है गैंग्रीन के, पहला है ड्राई गैंग्रीन एंड सेकंड वन इज द मॉइस्ट गैंग्रीन। ठीक है, आफ्टर दैट वेदर द ड्राई गैंग्रीन अकर और द मॉइस्ट गैंग्रीन अकर, इट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर एज वेल एज द टेम्परेचर ऑफ द टिश्यू। बेसिकली किसी भी टिश्यू में किस तरीके की गैंग्रीन होगी वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। बेसिकली उसमें कितना मॉइस्चर है और कितना टेम्परेचर है उस पर्टिकुलर टिश्यू का, यही डिसाइड करते हैं कि वहां पे ड्राई गैंग्रीन है या मॉइस्ट गैंग्रीन होनी है। ठीक है, moving on, when the cognitive necrosis is dominant, the process is dry gangrene, and when the liquefative necrosis is pronounced, it is moist or the wet gangrene। बेसिकली जब किसी भी टिश्यू में कॉग्निटिव नेक्रोसिस डोमिनेंट होगी तो वहां पे ड्राई गैंग्रीन की कंडीशन डेवलप होगी, और जब किसी भी टिश्यू में लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस डोमिनेंट होगी, मोर प्रोनाउंस्ड होगी, तो वहां पे वेट और मॉइस्ट गैंग्रीन की कंडीशन डेवलप होगी। ठीक है, so now moving on, we will discuss about the dry gangrene। So simply the dry gangrene is observed in the extremities when the necrosis occurs, the circulation is no longer maintained, the necrotic tissue get dehydrated by the evaporation and become dry, the temperature and the moisture content in the extremities is less, so spread of the bacteria is slow। देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द ड्राई गैंग्रीन। सिंपली द ड्राई गैंग्रीन इज यूजुअली सीन इन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एन एनिमल। एनिमल बॉडी की जो एक्सट्रीमिटीज हैं, लाइक लेग्स, लाइक ईयर्स, लाइक वॉटल, लाइक कॉम्ब, तो यहाँ पे जो एक्सट्रीमिटीज में आपको गैंग्रीन देखने के लिए मिलता है अक्सर वो होता है ड्राई गैंग्रीन। ठीक है, आफ्टर दैट व्हेन द नेक्रोसिस अकर द सर्कुलेशन इज नो लॉन्गर मेंटेन्ड। अब जब किसी टिश्यू और सेल का नेक्रोसिस होगा तो वहां पे सर्कुलेशन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो द नेक्रोटिक टिश्यू गेट डिहाइड्रेटेड बाय द इवापोरेशन एंड बिकम ड्राई। अब जब उस नेक्रोटिक टिश्यू का सर्कुलेशन जीरो हो गया तो वहां पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इसका मतलब वहां पे जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और वो नेक्रोटिक टिश्यू ड्राई बन जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन, द टेम्परेचर
and the moisture content in extremities is less, so the spread of the bacteria is slow. अब बेसिकली ये जो एक्सट्रीमिटी रीजन होते हैं किसी भी एनिमल बॉडी के, वहां पे टेम्परेचर और मॉइस्चर का कंटेंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वहां पे जो भी इन्वेडिंग बैक्टीरियाज हैं उनका स्प्रेड बहुत स्लो होता है. ठीक है. So now moving on, we will discuss about the macroscopic features of the dry gangrene. So simply the area is dry, shriveled and appears mummified as a result of the dehydration. It is reddish brown, green, grey or black in color due to the iron sulfide. The bacterial putrefaction of the dead tissue produces the hydrogen sulfide. सो देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द मैक्रोस्कोपिक फीचर्स ऑफ अ ड्राई गैंग्रीन. सो सिंपली द एरिया इज ड्राई, श्रिवल्ड एंड अपीयर्स मम्मीफाइड एज अ रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रेशन. देखो, जहां पे भी किसी भी एनिमल बॉडी के किसी पर्टिकुलर टिश्यू रीजन में अगर वहां पे ड्राई गैंग्रीन है तो वो पर्टिकुलर एरिया बिल्कुल सूख जाएगा, श्रिवल्ड हो जाएगा, आपको मम्मीफाइड अपीयरेंस नोटिस करने के लिए मिलेगी एज ए रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रेशन, क्योंकि जितना भी मॉइस्चर कंटेंट था उस पर्टिकुलर टिश्यू रीजन का वो बिल्कुल जीरो हो चुका है. ठीक है. After that, it is reddish brown, green color, grey color, black in color due to the iron sulfide. अब ये जो ड्राई गैंग्रीन का एरिया है आपको रेड कलर का दिख सकता है, ब्राउन कलर का दिख सकता है, ग्रीन कलर का दिख सकता है, ग्रे और ब्लैक कलर का भी दिख सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द आयरन सल्फाइड. ठीक है. Now the bacterial putrefaction of the dead tissue produces the hydrogen sulfide. अब जब ड्राई गैंग्रीन के केस में बैक्टीरियल प्यूट्रिफिकेशन की प्रोसेस शुरू होती है ऑफ द नेक्रोटिक टिश्यू, तो वहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रोडक्शन होता है. ठीक है. So that's all for this video. We will meet very soon in the next one.